Any founders listening to me? Yes, you are audible, sir. Yes, you are audible, sir. Uh, so voice is not actually clear, but am I clearly audible? Because only then it Yes, will sir, make clearly sense. audible. No, no, you are audible, sir. We are clearly listening. Okay, okay. Uh, Fine. The focus of today's discussion is basically on the new foundations, and I wanted it to be in the interactive and discussion mode because this is not an MBA class. It should be something which is of actual use to the founders. So that was the reason I was asking this. So our topic is financial projections. So can we really talk on something which would make me understand what is the level of importance of this topic to you? Anybody? Anybody wanting to speak out? Growth. Okay. This is much more than growth, actually. Um, how do you express to anybody about your business? How do you tell whether it is good or bad? What is the performance? The only way of expressing a business is financial metrics, financial reports, and financial projections. So I would go to the extent saying that it is the language of the business. Now, the reason of saying this is yes, you can say that we have made this much social change, we have caused this many people to cure from any disease. Yes, that is one of the social angle of expressing a business. But even that needs some financial projections. Against what cost? That will be an important thing. So that cost, that financial projection, even if you are expressing your social angle of business, it is important. But it is a must and the only way to express your business to somebody else and to compare with anybody else and to compare with your own past is the financial reports, financial metrics, and financial projections. So, what do you understand by projections? What are projections? Anybody? Kindly keep yourself involved if you really want to take away something from my experience and this topic. Otherwise, it will be only a formality. Okay. So what was the question again? Could you please repeat it? What are projections? Our topic for today is financial projections. What are projections? What do you understand by projections? The forecast of a business. Uh, business position, Okay. which Uh, involves P&L, profit and loss, or balance sheet, and everything involved in it. Fine. So projection means how much we are going to costs and how much we are expecting from our business revenue and input costs like that. These Uh, are the projections. Now, one of the issues with all the abstract subjects like theoretical physics or mathematics or quantitative finance is that some things we know, but we don't properly understand. Some things we understand, but we don't properly internalize. There is a difference between knowing, understanding, and internalizing. And until you internalize something, you will not be able to apply it to your business. It will remain theoretical, but the platform at which we are sitting is talking of the practicality, the reality, the realism which you will be executing in the field, in the real world. So it is important to move from knowledge to wisdom. And that can only happen once you really apply this and you dig deep into the concepts of quantitative finance. There can be a full semester course on this, but in the next 2 hours, we'll be discussing which is very much direct and relevant to your things. We'll be talking of something which you will be needing in your next pitch sessions. And my focus will be on to make your
understanding of matrix very clear, and then moving on to how to prepare projections and what all is important, and finally we'll be taking up questions whatever your doubts are. I have 3-4 questions already put in through email, but that also I will take up in the end and try to cover the theory of that in this discussion. What is the what are the 3 primary things for a startup to work or to even exist? Try it, somebody. Primary 3 things. कि ये नहीं Customer होगा. desire. Yes, even to exist. Yes, Sales. one market. Sales, Market is according to me, is the most important. okay. Market covers everything about sales. 2 more things. Fund, sir. But customer See, the primary things, to whatever management principles you go, 3 P's. Yes. 4 P's, 5 P's, there are many principles about that. And all the principles include finance as one of the major pillars. But I have a different viewpoint, slightly different viewpoint. There are businesses which have worked out and just generated finance without investing. So their rate of return is infinite because you only get generate. Even in your surroundings, you can see many businesses like brokerage. It is only the network, their asset is network, but they're not investing much. Almost nil investment is there, but they're generating. So what are the 3 things? One is the idea or the service or the product. Second is the market. What is the third? Because why I am saying primary? Like we have 3 primary colors without the existence of which we cannot have any color. So what are the third? What is the third primary pillar because without which there cannot be a startup? So to 2 we have talked, the idea, product or service. Second, market. The third is the zeal to execute. There are many ideas, many ideas. Even after we have ideas on the platform, the success rate is only 2%. Why? Because of this execution. And again, why these are 3 primary pillars? Because these 3 things nobody can give you. Finance can be given by investors. It can be given by in the form of grant, in the form of venture capital, in the form of angel fund. Your friends can give. And you can even try out without doing anything. So the primary things you have to ensure that you have these primary things, and there are a lot of funds available in the market. I can assure you, if you have these first 3 pillars intact, the fourth, the finance will not be a problem. There are many people wanting to invest. So like I just remember 2 lines. पैसा खुदा नहीं है, पर खुदा से कम हो ऐसा लगता भी नहीं है. This is the reality with this 4th pillar. Because first 3 can cause the existence. But now I am slightly contradicting my statement. Scaling, the speed of scale, for that finance is required. I gave the example of brokerage. You can start the brokerage with your network 10, 20, 50 people. But when you want to increase the rate of its traction, increase the rate of its acceptance, adoption, and increase the revenues, then you will need maybe mobile app or maybe sub offices. Then you need the finance. So finance is required for scaling. And for scaling, you have to express your existing stand. And for that existing stand, you need financial projections. So now what are the projections? The first thing, they are not guesses. You cannot just say this is my projection. I will grow 10 times
in 10 years. This is a guess. What is the difference between guess and a projection is that it should be based on a logic and it should be strategically expressed. What is a strategy? What is strategy? What do you understand by strategy? These are small words but of deep value. That is the reason you might be listening these words from established CEOs repeatedly. There are courses in management institutions which only teach you strategy for whole year. So we unknowingly use it as if it is a simple word with no great meaning, and that is the reason we are not able to apply it to our startups. So what is strategy? Can anybody try? Uh, I personally feel it that it is something we, for a business or for a life, we plan it to win something in our life. Uh, so we smartly plan the things to execute it perfectly to win in that sphere, or you can say in that field. Yes, So you are that coming close. You are coming close. Strategy would be, in my sense, Yes, would be a right. long-term detailed plan. Fine, fine. The one word that I wanted and is missing in all three of the responses is the target. Yes. Strategy means all your actions should be focused on some target. That is the strategic approach. And until your target is clear, you will not be able to define any strategy. So that is the reason that projections must be aimed at something. You will sell your pen this many units in the region of Chandigarh. This is strategy. You will sell is not a strategy. You will sell your pens is not a strategy. You will sell your pens in Chandigarh is also not a complete strategy. To whom? At what price? At what margin? With what marketing cost and with what marketing approach? This makes complete. So projections should be strategic expressions, not guesses. And what investors seek? Everything I will link to investor because that is your primary goal. In your projections, they seek what few things I have written? Evidence of scalability. How will you produce evidence? Because this is something of future. How can you produce evidence of something which has not happened? If there is market already existing, then Similar, this means the similar scalability is stories, scalable. similar products. Right. Investor point of view at the very early stage is to see how deeply engrossed you are, whether you are talking on logic. I will share my experience of getting funds. I don't know how many of you know I have my two startups funded by Indian Angel Network, and one of the product is a physical device, my patented device, and it is totally novice product. It is not. It does not have any competitors. So the thing was, how many of it you can sell? Now, one of the variants of that product was which was to preserve food grains in the households from moisture. That was one of the variant. So how to say how many will be sold? So when I was discussing with the investors of Indian Angel Network, they said, okay, what is the figure? I projected a figure. So obvious question was, how did you arrive to this figure? So I said I took the figure of these many refrigerators were sold. These many mixer grinders were sold. And this application will appeal to those mindsets and those economic background people who can afford refrigerators, who can afford mixer grinders. And this is having the similar application, a kitchen appliance. A refrigerator is also to preserve the food, and this product is also to preserve the food. So they appreciated this analogy. And you have to find your answers to these type of questions because this was my discovery of answer.
Nobody taught me you must express. But because I was deeply engrossed in my product and I was determined that I have to win this talk, so, and I was anticipating, these were the common questions. So you have to dig deep into your project and you have to think of the answers yourself. Like this, you have to make the analogy. There can be primary reports also. You can visit few people, potential people, and then you can say, okay, yes, I showed this and they are ready to take this product from me. So you can create the evidence. Then a realistic grasp of costs. You must know how much it costs. It must be realistic. And what are the problems in getting a realistic cost is when you go and ask somebody that I will need a small motor for my robot. If it is one off interaction, they may charge you say ₹1,000 for one motor. And you start building your product on the basis of that ₹1,000 quotation. Your end product will be very, very costly. You have to go into the realism. You have to discuss, okay, if I take 1,000 motors, will it be 1,000 per piece? Maybe you get at 500. And your ultimate cost comes down to the 50% of your original thing. So you have to think in the terms of business. Once you start thinking in the terms of business and the scale you want to reach, then only you will be able to find out the realities of that product, realities of that venture. And the hockey stick. What is hockey stick growth curve? Any venture first eats into your funds. It burns. शार्क टैंक में सुना होगा ना बर्न क्या है. सो शुरू में जो खर्चा लगता है दैट इज द बर्न. इस पे आएंगे और एक्सप्लेन करूंगा इन चीज़ों को. उसके बाद अर्न होगा. अब नॉर्मली नेट पे पढ़ के एक स्लाइड डाल दी जाती है कि दिस विल बी आवर हॉकी स्टिक ग्रोथ. बट इन्वेस्टर्स आर फेड ऑफ दीज टर्म्स because they already know that this is copy pasted from AI. So you must express in real terms. कितना ग्रोथ, कितना सेल्स, किस रेट पे, रेवेन्यू क्या कॉस्ट लगेगी. So all these things can be expressed only and only if we understand financial projections. So the key concept is it should be reality as close as possible, logical talks. And everybody knows from the first day, first talk, that you cannot be 100% right. You cannot be even 90% right. But you must talk sense. Because what can be measured can be controlled. If you don't measure anything, you will not be able to control. What are the building blocks of financial projections? There are two ways. One is the top down, another is the bottom up. What is the top down? It started in the initial days of funding. Like I said, we will capture 1% of 1,000 crore market. How? If it was so simple, why it is not done till today? So this is something, these are few lines which are discussion killers. If you say this, investor will immediately lose interest, and he might listen for another 5 minutes just for the sake of listening, but he will have reached his decision by the time you finish with this slide. This is a total red flag. एक तो हमने ऊपर से पकड़ लिया मार्केट को. हमने नई कार निकालनी है तो हमने टाटा मोटर की सेल निकाल ली और हम उसको कह देंगे जी टाटा मोटर अगर 10 अरब की कारें सेल कर रहा है तो इसका 1% तो मैं बेच ही दूंगा. कैसे बेच दोगे? जितनी फिगर आज बोल रहे हो, टाटा खुद उतनी फिगर बेचने में उसको किसी टाइम बहुत मेहनत लगी थी. वो तो अब पहुंचा ना उस लेवल पे. तो ये टॉप डाउन है. एक एंड टैम जिसको बोलते हैं, टोटल एड्रेसेबल मार्केट, ये टर्म्स तो पता होंगी जो है. तो इन चीज़ों को टैम, सोम, सैम को पकड़ के अगर ऊपर से नीचे चलोगे तो ये रेड फ्लैग है. नीचे से आपने ऊपर तक जाना है. Now will build from the ground.
कैसे, कहाँ से मार्केट, जैसे पहला शब्द मार्केट आया था जब मैंने पूछा था, तो मार्केट लोगे कहीं से, मार्केट से ही स्टार्ट करनी है अपने बात। जैसे फॉर एग्जांपल वी विल हायर 2 सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स, वो 20 कॉल्स करेंगे, वो 50 चीज़ें बेचेंगे, तो आप पहले रेवेन्यू जनरेशन कैसे होगी वहाँ से बात अपनी शुरू करो कि ये इतना रेवेन्यू तो मैं ले आऊँगा। ये आपका बिल्डिंग, सबसे पहला बिल्डिंग ब्लॉक होगा आपके कस्टमर्स। कस्टमर को क्या बेचोगे, सर्विसेज या प्रोडक्ट्स। तो आपने अपनी सेल्स से बात स्टार्ट करनी है, बिकॉज दैट इज इन द एंड विच मैटर्स। आपका टैम सैम सोम सब फाइनली किस लिए गिनते हैं कि कस्टमर कौन है आपके, कितने हैं, उनको क्वांटिफाई करने का एक अप्रोच है, फिल्टरिंग अप्रोच, एक फनल है। फिर आपके रेवेन्यू स्ट्रीम्स आपको क्लियर होने चाहिए। मैंने बहुत बढ़िया एक थ्योरी लिख दी, वो यूज़ कहाँ होगी वो मुझे पता नहीं है। सो आपने चाहे आइंस्टाइन को मात कर दिया हो, लेकिन उसकी फाइनेंशियल वैल्यू नहीं है। हाँ, जब आप बताओगे कि इसकी किताब बेच के मैं इतनी पीसेस छापूंगा, इतने स्टूडेंट्स पीएचडी करेंगे, इतनी थीसिस छपेंगे, उसका मेरे को रॉयल्टी ये मिलेगी, इतने कॉरपोरेट्स कंसल्टेंसी देंगे, तब आपकी किसी रिसर्च की वैल्यू है, देन इट कम्स आउट। जंगल में मोर नाचा किसने देखा वाली बात है, तो मोर को जंगल से बाहर लाना पड़ेगा। सो थर्ड पॉइंट इज यू मस्ट बी वेरी क्लियर अबाउट योर कॉस्ट। सो क्या तीन चीजें इसमें आई, कस्टमर, रेवेन्यू और कॉस्ट। और आप मोटा मोटा देखेंगे तो अगर तीन चीजें पता है तो आपका धंधा जम गया। सो डायरेक्ट कॉस्ट क्या चीज इसमें लगेगी, कितने की लगेगी, कहाँ से मिलेगी, तो ये सारी चीजें आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। जितना जल्दी आप अपने दिमाग पे जोर डाल के होमवर्क करके इन चीज़ों की तैयारी के साथ जाओगे, वहाँ पे आपको उतनी अच्छे फंड्स मिलने की। और जब फंड्स मिलते हैं तब स्केलिंग इतनी फास्ट होती है, इतनी फास्ट होती है। माय स्टार्टअप grew at the rate of 100% every year for consecutive 8 years। तो ये जब आपका एक थ्रेशोल्ड निकल जाता है ना, जब आपको चीज़ें पता होती है, व्हेन यू बिल्ड द कॉन्फिडेंस ऑफ द इन्वेस्टर्स, तो आपकी उम्मीद से भी तेज चलता है, फिर वो लेके जाते हैं। So now we focus on few terms, theoretical and from the investor's viewpoint. Once we are clear with these terms, you might have been listening on Shark Tank, but since they are not explained, so you must be just guessing or making estimates what these actually mean. So one is the burn rate. So the normal statement is how much cash you are burning each month to stay alive. What is that burn rate? Every month you are earning something and you are spending something. If you haven't started selling anything, you are only burning. If you start earning few things, suppose to stay alive, that means the business to say stay alive, you need to spend 100 rupees per month. Otherwise, the shop will shut down. If you are not earning anything, your burn is 100 rupees. I am taking monthly figures. You can take annual also, but monthly for a startup, monthly is good, because when you start talking yearly, they don't expect you to work so slow that you think in terms of years, because in few years they want their exit. वो पैसा लगा के कमा के कुछ सालों में तो निकल जाना चाहेंगे। सो अगर आप सालों की परिभाषा में बात करोगे तो देन यू आर क्वाइट स्लो फॉर देम। सो टॉक इन टू मंथ्स। So you are burning 100 per month. Now you start earning 20 rupees per month. So your burn is 80 rupees. And you start earning 120. So now you are into some hopes. You have stopped burning. So this is the burn rate. Then comes CAC, customer acquisition cost. Quite commonly discussed on Shark Tanks. It is the total marketing spend. Why do you market? Why do you spend on marketing? To get customers. How many customers you get? New customers. That is the CAC, customer acquisition cost. What does this reflect for the investor? That your marketing is efficient.
if you think that TV marketing is one of the best ways, and you start advertising on TV, and your product is for some benefit of people who cannot afford TV, does it make sense? So that is the reason investors ask about CAC, to know that your marketing is efficient, you know where to market, how to market. What is the difference between sales and marketing? Anybody? सेल तो एक्चुअल हो गया ना जी। मार्केटिंग भी एक्चुअल होती है। नहीं, मार्केटिंग में क्या होता है कि वी आर जस्ट एडवर्टाइजिंग, जैसे मार्केटिंग हो गया, ये हो गया है जी। जैसे Sales- आपने 10 से- पीपल को मार्केट किया, लेकिन हो सकता है उसमें से 2 पीपल को आप सेल कर पाओ। Okay. Marketing is basically promotional activity, how you can acquire the customer. Sales is actual figure which you are getting. Marketing and sales are totally different. Marketing is how you carry your product to the potential customers. Potential customer, they might not buy it, and you don't know who will be your actual customer, but you carry to the potential customers the message of your product or service. How do you carry that message? The whole plan, the media, the ideology, the words, the expression, it is the expression of your product. Rest all is strategy. कि इस टीवी पे देंगे, इस मैगजीन में देंगे, ये छापेंगे, ये मॉडल करेंगे, ये स्ट्रेटजी है. मार्केटिंग इज द एक्सप्रेशन ऑफ योर प्रोडक्ट इन अ वे विच रीचेज टू द पोटेंशियल buyers. Sales is how much you are delivering that product to a user, to a consumer. Actually, the word is consumer because he consumes. Anybody who does not consume your product will not come back to you. So user, buyer and consumer are also different words. User can be consumer, but buyer may not be consumer. You buy a gift for your mother, consumer is your mother, you are buyer. So what is the difference? Okay, let's talk a couple of minutes on marketing. What is the difference in buyer and how will it make difference if you know who is a buyer and who is a consumer? Because if somebody in routine makes the decision of purchase, he is the buyer. Your marketing will be focused on buyer, but your product features should be focused on consumer. So if you precisely know the difference in these words, you will be able to make better decisions for your business and also impress the investors in a more effective way. What is the lifetime value? Lifetime value of a customer. What is it? कितने टाइम तक बार-बार आपके पास वो सेम Repeat order. The whole during the whole life of the customer. कब वो छोड़ के एयरटेल का कस्टमर जियो के पास चला गया, तो एयरटेल का लाइफ टाइम वैल्यू खत्म हो गई. तो न्यू कस्टमर और पुराने कस्टमर्स की रिटेंशन दोनों अलग अलग चीजें बताती हैं. तो यहाँ पे CAC जो है वो न्यू कस्टमर पे फोकस करेगा. क्या फर्क आएगा इसमें? क्या फर्क आएगा? न्यू कस्टमर attraction Comes with a cost. with the cost and with the marketing. It reflects your marketing efficiency, Old customer will come on your quality or quality of the product. or your value you put. Yeah. give. अब पुराने टाइम में ना छोटी छोटी दुकानों पर भी ये कहा जाता था कि मार्केटिंग एक बार बेच सकती है, उसके बाद प्रोडक्ट बिकता है. सो ये सब चीज़ें अभी भी लागू है. सो रिटेंशन is related to your product and CAC is related to your marketing. Then gross margin. आपको रेवेन्यूज आ रहे हैं, उसके बाद डायरेक्ट कॉस्ट उसमें से निकाल दो. जितना मार्जिन बचेगा, जितना पैसा बचा आपकी जेब में, अगर बचा तो दैट इज द मार्जिन. मार्जिन नेगेटिव भी हो सकता है. नेगेटिव हो गया तो फिर बर्निंग हो गई है. Your value. हाँ, और अगर मार्जिन बचे तो आपकी स्केलेबिलिटी के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा. ब्रेक इवन पॉइंट, जब आपके टोटल रेवेन्यूज, इसके फॉर्मूलाज भी डिस्कस करेंगे आगे. यही टॉपिक 2 या 3 बार आएंगे अलग अलग एंगल से, because like I said, my focus is to help you internalize these concepts. What is break even point?
the exact moment when your total revenue equals your total expenses. अब बहुत जो मेरी इंटरेक्शन हुई है स्टार्टअप से इससे पहले, बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि हमें ब्रेक इवन बड़ा क्लियर है और वो अपनी रिपोर्ट में डालते भी है. So can you try and tell me what are the units of this break-even point? I said the exact moment when your total revenue equals your total expenses. हम किन terms में बताते हैं break even? किन terms में? Okay. One response in the number of years. मनी में मतलब जितना बर्न हुआ आपका ये तो हमें ब्रेक इवन पॉइंट बताएगा. So break-even point doesn't have any. It's totally zero. It's neither a loss nor a gain. Yes, that is the time period, the moment when we get it. But how do we express that now we have reached the break even point? The fundamental is the number of customers. And then we can translate that these many customers we will get in 1 year or 1.5 years or 2 years. But even when I speak that it is a moment in time, it is calculated primarily in terms of number of customers. If you directly try calculating in terms of time, in terms of when my revenue will be at net zero, then you will be somehow caught on the wrong foot when you will be discussing, when you will be pitching your case. So you must express, it will be better accepted by investors when you say, my marketing is expected to generate these many new customers in this much time, and these many customers will generate sufficient revenue for me which will cover my cost, bringing to a net zero level. So my break even point is these many customers which are expected in this much time. So this is the right way of expressing break even. And before that is the time period which is called valley of death, क्योंकि वहाँ उसको नहीं संभाला गया तो और आपको इन्वेस्टमेंट नहीं मिली तो धंधा नहीं चलेगा. ROI, which is also a subsection in today's discussion, it is very simple. इतना पैसा लगाया इतना मिला. इसको एक्सप्रेस अलग अलग तरीके से करेंगे, फार्मूलाज भी डिस्कस करेंगे. बट इसमें मोटी सी बात यह है कि मैंने 10 लगाए थे, मुझे 12 मिले कि 8 रह गए या 20 मिले. सो दैट इज द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन द मोस्ट फंडामेंटल एंड प्योर वे. और इन्वेस्टर्स इसको मल्टीपल टाइम्स में गिनते हैं हमेशा. वो हमारी मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस या क्वांट फाइनेंस के क्वेश्चंस होते हैं थ्योरेटिकल, कि कितने परसेंटेज आया, CAGR क्या रहा, IR क्या रहा, वो भी डिस्कस करेंगे बिकॉज यू विल नीड टू अंडरस्टैंड एंड मे बी एक्सप्रेस इन प्रोजेक्शंस. बट इन्वेस्टर्स नॉर्मली से कि मुझे 3 साल में 5 गुना चाहिए, मुझे 2 साल में 3 गुना चाहिए, 10 साल में 20 गुना चाहिए. सो दिस इज़ द वे दे कैलकुलेट. हम प्रॉपर्टी खरीदते हैं, प्रॉपर्टी में कभी परसेंटेजेस यूज़ ही नहीं करते. 10 लाख की ली थी जी, 50 की बिक गई. कब ली थी, दादा ने ली थी, ये कोई नहीं बताता. सो इफ़ यू कैलकुलेट द IRR even of the property with this type of escalation, it comes to around 12%, जो बाकी भी चीज़ें दे रही हैं. Even with the recent silver surge, if you calculate for last 10 years, it will come to 10-11% only. So, but in the terms of multiple, it gives a different sense. So, similarly, this is a property, this is an asset for the investors, your company. So, historically, our mindset is like that, we calculate in terms of multiples. So, first of all, to ensure the multiples or to project the multiples, we need to understand the unit economics. If you can earn on 1 unit of your product, then it is only a matter of selling. Sell more and earn more. So unit economics must be very clear. It must be positive. It is not positive, you must stop then and there. Then you must keep it very simple. There is a British saying, if you start talking of a period beyond 3 years, gods start laughing. So they say we cannot really estimate beyond 3 years.
So 3-year projection is sufficient. That is a different story. We cannot even predict for 3 days or 3 minutes. But yes, somewhere we have to start. Should be a 3-year projection. Should it be conservative or aggressive? 24 घंटे काम करोगे? You feel like working 24 hours. अगर मैं 12 घंटे में 10 यूनिट बेचता हूँ तो स्टार्टिंग में डिटर्मिनेशन कह लो, एग्रेशन कह लो, ऐसा होता है द इनिशियल थर्स्ट कि मैं 24 कर लूँगा. होता नहीं है. Aggression cannot sustain. So you have to be, if you go conservative, In between that is called base case. So you have to be realistic with a base case along with 2 scenarios. Optimistic, and the second one will be, एक ऑप्टिमिस्टिक है तो दूसरा कौन सा है? कौन सा? इसलिए मैं बोल नहीं रहा था. अगर आप बिजनेस में पेसिमिस्टिक होगे तो दुकान बंद हो जाएगी. सो यू कैन नॉट यूज द वर्ड पेसिमिस्टिक. सो व्हाट इज द वर्ड टू बी यूज्ड? Worst case. Conservative estimate. Base case, conservative, and optimistic. Your words reflect your thinking. So you have to choose your words when you're speaking. Because they will judge you, the investors will judge you. Because nobody can say कि कल को काम चलेगा नहीं चलेगा. Nobody knows. So they are actually not putting money on the business. They are putting business on you and your product or the innovation. Not even the product. You and the innovation. These are the 2 final things. So 2 category of metrics. How do we measure? 2 category of metrics we will discuss. One is the growth and efficiency. How do you judge the health of your business? Like we discussed, customer acquisition cost. It is the cost to buy a new customer. Retention is something different that we'll discuss separately. So one is, what is the cost to buy a new customer? आपका प्रोडक्ट 10 रुपए का है, आपको कस्टमर ढूंढने में 20 रुपए लगेंगे तो कैसे चलेगा? So this is very important metric. So total sales, the simple formula, total sales and marketing expense divided by the new number of customers that you get. Normally this is expressed in monthly basis. Definitely low CAC means efficient growth. And this is also the major focus given to the marketing team. Second is, like we discussed, lifetime value. The formula is ARPU is very important term repeatedly used in this section. What is this ARPU? Average revenue per user. It is predominantly used in telecom sector, but this is applicable to all the sectors. And this you must know. आपके पास एक कस्टमर है, उसने 10 साल के लिए आपका प्रोडक्ट यूज़ किया, लाइफ टाइम वैल्यू यूज़ होगी. दूसरे ने 5 साल के लिए यूज़ किया. किसी के पास कुछ प्लान था, किसी ने आपका छोटा पैक खरीदा, किसी ने बड़ा पैक खरीदा. तो आपकी एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र कितनी आई और एवरेज लाइफ स्पैन कितना रहा, हम उसको स्टैंडर्डाइज कर देते हैं. हर किसी का अलग अलग आपको कमाई देके जाएगा, अलग अलग समय तक आपके साथ रहेगा. सो उसको स्टैंडर्डाइज करके एक स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट करने का तरीका है ये लाइफ टाइम वैल्यू, और उसका फॉर्मूला है ARPU इंटू एवरेज कस्टमर लाइफ स्पैन. हायर LTV मीन्स स्ट्रॉन्गर लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी.
जितना ये लंबा होगा उतनी प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा होगी। अब आपकी एक तरफ तो CAC लग रही है, खर्चा लग रहा है, और एक आपको रेवेन्यू आ रहा है, लाइफ टाइम वैल्यू। कितना खर्चा करके कितना होना चाहिए? नॉर्मली द एक्सेप्टेड लेवल इज 3:1। एक कस्टमर आपको 3 गुना कमाई देके जाए, 1 रुपया लगाया तो वो 3 रुपये तो देगा ही। उतना ही दे रहा है तो मुश्किल है, आपको कोई प्रॉफिट नहीं आएगा। कम दे रहा है तो लॉस होगा, और डबल दे रहा है एक्सेप्टेबल है, लेकिन और भी तो बहुत खर्चे होंगे, वो कहाँ से निकलेंगे फिर? अकेला मार्केटिंग इज नॉट द ओनली एक्सपेंस। सो दीज आर दी ग्रोथ एंड एफिशिएंसी मैट्रिक्स। अब आते हैं आपका सर्वाइवल, जिंदा भी रहोगे कि नहीं। सो मंथली बर्न रेट फॉर्मूला कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। टोटल मंथली एक्सपेंसेस और टोटल रेवेन्यू का डिफरेंस है। एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे तो वो बर्न होगा, इसलिए एक्सपेंसेस पहले आए हैं फॉर्मूला में। ग्रोथ का रिस्क होगा पहला। दूसरा, एक चीज़ और इससे पता लगेगी कि आपको नेक्स्ट राउंड ऑफ फंडिंग कब चाहिए। आपके पास 100 रुपये हैं, 10 रुपये आपका बर्न रेट है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 10 महीने सर्वाइव कर सकते हो। आपको 10 महीने के बाद नेक्स्ट राउंड ऑफ फंडिंग चाहिए ही होगी, इसलिए बर्न रेट बहुत फ्रीक्वेंटली डिस्कस होता है। और 10 महीने बाद आपको सेकंड राउंड ऑफ फंडिंग चाहिए, तो उसकी तैयारी आपको 6 महीने बाद करनी पड़ेगी। अब वो सीरीज़ ए है या सीड है या सीरीज़ बी है, उस हिसाब से उसके डिसाइडिंग पैरामीटर्स होंगे। वो पैरामीटर्स होंगे तो उस हिसाब से डिसीजन होता है। आपको पता है, अभी बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं, बहुत बहुत सालों तक वो प्रॉफिटेबल नहीं होती, इंक्लूडिंग जोमेटो टाइप कंपनीज। क्यों नहीं होती? वो लॉस में करते हैं और बहुत पैसा भी मिलता है, और उनके शेयर्स भी बहुत ज़्यादा मल्टीपल के ऊपर बिकते हैं। ऐसा क्यों? तो सर मतलब मार्केट और कस्टमर से एक्वायर करने के लिए वो क्यों करते हैं? पैसा तो मिल ही नहीं रहा, लॉस कर रहे हैं ना। लॉस मेकिंग काम जितना बढ़ाओगे तो लॉस बढ़ेगा ना। तो ये हमने जो अभी तक फंडामेंटल जो सब मैनेजमेंट पढ़ी है, ये सब उससे उल्टा क्यों हो रहा है? प्रोजेक्शन है जी, उनके प्रोजेक्शन जो हमें एक्सेप्टेबल है, ये उससे क्या होगा? ये हायर लेवल अचीव कर सकते हैं। हम्म जैसे 6 मंथ्स में, 1 ईयर में, 2 ईयर में, हम्म ये मतलब अच्छा प्रोजेक्शन इनके बच्चे, ये जो बर्न रेट खत्म हो जाएगा, ब्रेक इवन आ जाएगा, जल्दी ब्रेक इवन आ जाएगा। अब यही बात आप उन लोगों से की तरफ बैठ के सोचो जिन्होंने उसमें पैसा लगाया है। उनका मेन एम, लेट मी बी वेरी ब्लंट, इज नॉट कि आपका धंधा चले। नो, दे वांट टू क्रिएट ए सिनेरियो वेयर दे कैन एग्जिट। अब सीड, ग्रांट, एंजल फंडिंग, VC फंडिंग, प्राइवेट इक्विटी फंडिंग, अलग अलग लेवल ऑफ फंडिंग है, और जो लोग उसको फंड करते हैं उनके डिसीजन मैट्रिक्स डिफरेंट होते हैं। अब प्राइवेट इक्विटी लेवल पे या हायर VC लेवल के ऊपर, और आपको ये बता दूं, ये बड़े बड़े डिसीजन 5, 7, 10 मिनट से ज़्यादा में नहीं होते, और उनको वही मैट्रिक्स चाहिए होते हैं, ट्रैक्शन। दे वांट टू क्रिएट ट्रैक्शन। अब ब्लिंकिट 10 मिनट में दे रहा है, आपके घर पे चीज़ पहुंच रही है। बहुत सी चीज़ें वो प्रॉफिट में नहीं लेते, फिर भी घर पे देके जाते हैं। अपना लॉस करके आपको चीज़ देते हैं, आपको थैंक यू बोल के जाते हैं। व्हाट इज द रीज़न? दैट यू रिमेन विद देम, यू लीव द बिग स्टोर्स एंड देन यू कंटिन्यू विद द ऑनलाइन सिस्टम। उससे ट्रैक्शन बढ़ेगा। जब ट्रैक्शन बढ़ेगा तो फिर आप हायर VCs को जाके बोल सकोगे कि मेरे पास इतने कस्टमर्स बढ़ गए, ये इनका पोटेंशियल है, सो यू गिव मी दिस मच मनी। अब वो पैसा जब आएगा तो जो पहले वाले इन्वेस्टर्स थे वो 5 गुना, 7 गुना, 10 गुना में पैसा लेके वो निकल जाएंगे। अब नए इसमें आए हैं, नाउ दे हैव टू थिंक, देयर वर्क इज डन। अब वो कैसे करेंगे? देन दे हैव अ डिफरेंट बॉल गेम। अब इसको IPO की तरफ लेके चलते हैं।
How do VCs and private equity people exit? By IPOs, by mergers and acquisitions. अब वो उस तरफ चलते हैं, फिर वो वहाँ दूसरी गेम स्टार्ट होती है. Finance is a big game and very interesting one. तो लॉस किसको होगा सर इसमें? किसी को नहीं होता. The beauty of this game is किसी को नहीं होता. यही स्किल है इसमें. इट इज़ ए विन विन सिचुएशन. और बिजनेस में तभी कामयाबी है जब वो विन विन सिचुएशन पे होता है. अगर वो विन विन सिचुएशन नहीं होगी तो वो अपने इनिशियल स्टेज पे बंद हो जाएगा. सो सेकेंड मेट्रिक इज रनवे. नाउ व्हाट इज रनवे? इट कम्स फ्रॉम बर्न रेट, द नंबर ऑफ मंथ्स द बिजनेस कैन ऑपरेट बिफोर रनिंग आउट ऑफ कैश. जो मैं उदाहरण दे रहा था, उस उदाहरण में रनवे इज 10 months. So the formula is total cash you have and your monthly burn rate. अब इन्वेस्टर क्या देखता है इसमें? जैसे मैंने कहा था कि हर मेट्रिक का मैं इन्वेस्टर एंगल बताऊंगा, बिकॉज दैट इज द एक्चुअल गोल. तभी आपकी पिचेस भी अब नज़दीक आती जा रही हैं. 6 महीने का है, इट्स नॉट वर्किंग, नहीं चलेगा, पैसा नहीं मिलेगा. उससे पहले एक्ट करना होगा. कम से कम 12 से 18 महीने. 12 महीने इज एक्सेप्टेबल. 18 महीने तो आप बड़ी हेल्दी सिचुएशन में. सो आपका सर्वाइवल बढ़िया है. सो इन्वेस्टर्स विल बी इन्वेस्टिंग हैप्पीली. तो आपको 1 साल पहले अपनी चीज़ पे सोचना शुरू करना है. अब और इन्वेस्टर्स क्या देखते हैं? जो ग्रोथ आप प्रोजेक्ट करने की सोच रहे हो, क्या वो ग्रोथ पेड है या ऑर्गेनिक है? आपने कोई ऐप बनाई और उस पर विजिटर्स आ रहे हैं, वो आपकी प्रोडक्ट की वजह से आ रहे हैं, आपकी सर्विस की वजह से आ रहे हैं, या कोई आपने एक इंसेंटिव दे रखा है कि जितनी बार भी सब्सक्राइब करोगे आपको कैशबैक मिलेगा? तो ये ऑर्गेनिक नहीं हुई, ये पेड हुई. ऑर्गेनिक डेफिनेटली जो अपने प्रोडक्ट या सर्विस के दम पे चलती है वो ऑर्गेनिक है. दैट इज मोर डिजायरेबल. कस्टमर्स प्रॉफिटेबल है या एक्सपेंसिव है? जिसको आप बेच रहे हो वो आपको कमाई दे रहा है या आपका खर्चा करवा रहा है? एंड कैन दिस स्केल विदाउट ब्लीडिंग? आपका बर्नआउट बंद होने के बाद क्या वो कंटिन्यू करेगा? ये चीज़ें टेस्ट करने के बाद फिर वो नंबर्स पे जाते हैं. पहले हमने कॉन्सेप्ट पे बात करी, फिर मैंने उसके फार्मूलाज बताए. अब मैं उस पर एक नंबर्स डाल के एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, सो दैट देर इज़ नो गैप इन अंडरस्टैंडिंग. सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, एक बार बोर्ड देख लीजिए. जो 1000 रुपीज़ पर कस्टमर CAC है, अब इन्वेस्टर उसको कैसे पढ़ता है? मैथमेटिक्स को वो अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके समझता है कि आपने 1000 रुपया खर्चा कर दिया, अब मुझे बताओ कि उससे कमाई क्या करोगे? कमाई आपकी लाइफ टाइम वैल्यू है उसकी, यही कमाई कर रहे हो ना उससे. ARPU 800 है, 24 महीने आपके पास रहता है, 19,200 रुपये आपसे एक बंदा कमाई आपको दे गया. सो इट इज़ गुड फॉर इन्वेस्टर्स. आपने 1000 रुपया खर्च किया और उस कस्टमर से आपको 20,000 रुपये मिले. सो इट बॉइल्स डाउन टू द सिंपल थिंग. बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये सिंप्लिसिटी कौन सी कॉम्प्लेक्सिटी से निकली है. सो द गोल्डन रेशो हमने 3:1 देखा था, ये 19.2:1 आ रहा है. सो इट इज़ वेरी गुड. अब क्या होगा? अब एक लेवल और चलेगी बात. यूनिट इकोनॉमिक्स दिखा दिया, दीज आर सॉलिड, वेरी सॉलिड. नाउ कैन यू स्केल? अब एक कस्टमर को बेच के बात नहीं बनेगी, आगे बढ़ा सकते हो. कब आपका पैसा खत्म होगा? वहां से आएगा. यू आर नॉट रनिंग बिजनेस फॉर 1 person. अब वो बहुत लोगों के पास जा रहे हो, तब वो मंथली एक्सपेंसेस, मंथली रेवेन्यू की बात स्टार्ट होगी. आपका एक्सपेंस 12 लाख है, कमा रहे हो 5 लाख, तो 7 लाख आपका बर्न हो गया. अब वो मनी पे, अब जो इन्वेस्टर
यूनिट इकोनॉमिक्स पे खुश था, अब यहाँ पे वो सीरियस हो जाता है कि फाइन, दैट मीन्स यू आर नॉट एबल टू स्केल. योर यूनिट इकोनॉमिक्स इज गुड, but you are burning this much of money. So with my investment, where will you be at the end of 12 months? This is a common question, and all pitches must be ready with the answer to this question. So now you calculate the runway. You already have 84 lakhs, you are burning 7 lakhs, so you are there for 12 months. So now he says, okay, tight, but he might invest, because by that time he believes in himself also, that I will see that you rise. अब अगले मीट्रिक पे चलते हैं, दैट इज चर्न. व्हाट इज चर्न? वी टॉक्ड अबाउट न्यू कस्टमर्स, वी टॉक्ड अबाउट repeat customers, but this is opposite of that. What if a customer loses? You start a month with 100 customers and 5 are gone by the end of the month, so your customer churn is 5%. What percentage of customers you lose out? This is also normally on monthly basis. Now revenue churn. What is revenue churn? The percentage of revenue lost due to cancellations. अब एक डिफरेंस आता है कस्टमर चर्न और रेवेन्यू चर्न में. उसमें तो सिंपल गिनती है कि इतने कस्टमर चले गए. रेवेन्यू चर्न के अंदर ये भी होता है, जैसे प्लान्स में होता है, सब्सक्रिप्शन में होता है, या होटलिंग्स में होता है, कि ये कस्टमर पहले 10,000 का कमरा लेता था, 5 का ही ले रहा है, अब 2,000 का ही ले रहा है. आपके पास पहले 1,000 का सब्सक्रिप्शन प्लान था, अब 200 का कर लिया. सो गिनती तो है. सो रेवेन्यू में आपको दोनों चीज़ें एडजस्ट करनी है, डाउनग्रेड्स एंड द लॉस ऑफ कस्टमर्स इन फिगर्स. सो कस्टमर चर्न के अंदर डाउनग्रेड्स आर नॉट काउंटेड, ओनली लूजिंग कस्टमर्स आर काउंटेड. But in revenue churn, you also account for downgrades. But if you are having different departments, कि 10,000 का कमरा इस डिपार्टमेंट की अकाउंट बुक्स में आएगा, 5,000 का कमरा इस डिपार्टमेंट में आएगा, फिर वो 10,000 वाले के लिए डाउनग्रेड भी एक लॉस ऑफ कस्टमर है, 5,000 वाले के लिए वो न्यू कस्टमर हो जाएगा. व्हाट इज सो 10%, अगर आपका चर्न 10% और हायर है, दैट मीन्स it is a bad product market fit. The product is not solving the purpose. हर महीने 10% कस्टमर जा रहा है, तो आपको दोबारा से मार्केट समझनी पड़ेगी, प्रोडक्ट में कुछ चेंज करना पड़ेगा, या अपना कंपटीटर समझना पड़ेगा. व्हाट इज नेगेटिव चर्न? नेगेटिव चर्न अच्छा होगा कि बुरा होगा? यस, शब्द नेगेटिव है लेकिन चीज अच्छी है ये. सो नेगेटिव चर्न कैसे होगा? जब तो नया कस्टमर है, वो तो हमने CAC में उसका इफेक्ट आ जाएगा. तो ये कहां से आएगा? नेगेटिव चर्न कहां से आएगा? अपग्रेड से. डाउनग्रेड तो डिस्कस कर लिया, 5,000 वाला बंदा 10,000 के कमरे में तो रुक सकता है, हम 800 के प्लान से 1,000 के प्लान में भी तो जा सकते हैं. सो ये रेवेन्यू का एडिशन होता है, दिस इज कॉल्ड नेगेटिव चर्न. इसका इफेक्ट क्या होता है? हम कंपटीशन में हमारा मार्केट शेयर बढ़ा रहे हैं. So break even concept. It is the point in time where revenue is equal to total cost. After break even, ये क्यों इंपॉर्टेंट क्यों है? इतना क्यों इंपॉर्टेंट? ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसके बाद बिजनेस अपने काम को खुद फंड करना स्टार्ट कर देता है. कैलकुलेशन, न्यूमेरिकल एग्जांपल्स. अब एक 1,000 रुपये पढ़िए, इसको खुद ही पढ़िए, स्क्रीन पे ऑनलाइन वालों पे भी है. कंफ्यूजन हो तो पूछिए.
एनी डाउट्स? Variable cost means? ये दोनों मैंने इसीलिए हाईलाइट करके रखे हुए हैं बिकॉज दिस वाज द एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कि वेरिएबल और फिक्स्ड को कैसे पहचानना है। आपने एक फैक्ट्री लगाई, आपने एक यूनिट भी बनाना है तो आपको बेसिक मशीनरी चाहिए, उसको भीगने से बचाने के लिए छत चाहिए, बिजली का कनेक्शन चाहिए। कुछ चीज़ें हैं जिसके बिना आप एक यूनिट भी नहीं बना सकते फॉर द बिजनेस। MVP बना सकते हो, वो कहीं शॉप पे जाके बनवा लोगे कहीं से फैब्रिकेटर के पास, अपना नहीं बना सकते। तो वो जो कॉस्ट लगनी ही लगनी है काम शुरू करने के लिए, दैट इज कॉल्ड फिक्स्ड कॉस्ट। कैपिटल चीज़ें जितनी भी लगती है, कैपिटल यानी जिनका वो एक्सपेंस जिनका बेनिफिट बहुत से प्रोडक्ट्स बहुत से समय तक आता रहता है। एक मशीन लगा ली, बहुत से प्रोडक्ट तक आएगा, वो दैट इज ए कैपिटल कॉस्ट। तो ये फिक्स्ड मंथली कॉस्ट होती है। उसको मंथली में भी कर सकते हो, एनुअल में भी कर सकते हो, जैसा भी आप एक्सप्रेस करना चाहो। अच्छा, फिक्स्ड गिनते कैसे हैं? इसी से ही दूसरा एंगल इसका ध्यान में आया कि फिक्स्ड गिनते कैसे। आपकी बिल्डिंग में 10 करोड़ रुपए लग गए तो पहले महीने में 10 करोड़ निकाल दोगे क्या? लाइफ सर्कल होता है, ये उसका कितना तो लाइफ है। हाँ, कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, डेप्रिसिएशन, एमोर्टाइजेशन। तो इस टाइप से फाइनेंशियल प्रिंसिपल्स होते हैं कि आपने हर महीने कितना कितना एलोकेट करना है। जैसे आप लोन लेते हो उसकी EMI बनती है ना, इसी तरीके से बिजनेस के ऊपर आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर को एमोर्टाइज करने का या आपके एसेट्स पे डेप्रिसिएशन लगाने का तरीका होता है। वो सभी एक साथ नहीं लगाए जाते, उसकी लाइफ होती है 10 साल, 15 साल, फिर परसेंटेज में होता है। IT प्रोडक्ट्स की तो 33% डेप्रिसिएशन भी लगाई जाती है कि 3 साल में ऑब्सोलीट हो जाते हैं। मशीनरी की आपकी लाइफ साइकिल के साथ 15 साल मशीनरी चलेगी तो 15 साल के साथ। तो इस तरीके से उतना उतना आप फिक्स्ड कॉस्ट उसमें से निकालते जाओगे। ये प्रॉफिट एंड लॉस का तरीका है, अगली स्लाइड में आएंगे। यहाँ आप सिर्फ इतना समझिए कि फिक्स्ड कॉस्ट वो है आपको हर महीने खर्चना पड़ेगा धंधा सर्वाइव करने के लिए। अब वेरिएबल कॉस्ट है, बिजली का कनेक्शन ले लिया, आपकी मशीनरी बंद है, आपकी वेरिएबल कॉस्ट ज़ीरो है, रॉ मटेरियल भी नहीं ले रहे, आपने बनाना ही नहीं है कुछ, तो वेरिएबल कॉस्ट नहीं है। लेकिन आपने बनाना है तो आपको रॉ मटेरियल भी लेना पड़ेगा, बिजली लगानी पड़ेगी, लेबर देनी पड़ेगी। वेरिएबल कॉस्ट इज दैट कॉस्ट विच इज डिपेंडेंट ऑन योर प्रोडक्शन, on the number of units you produce, which varies as per your output of the product. ये वेरिएबल कॉस्ट होती है। अब फिक्स्ड कॉस्ट आपकी जेब से लग चुकी, कमाई दोनों की करनी है, लेकिन ब्रेक इवन निकालने के लिए पहले ये देखना है कि जो रनिंग चीज़ें हैं, रनिंग खर्चे और रनिंग कमाई, क्या उसमें से कुछ बचता है? तो दैट इज, इसमें अगर एग्जांपल पे चले तो 1000 रुपये आप एक कस्टमर से ले रहे हो, आपकी वेरिएबल कॉस्ट 400 रुपये है, तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन, इसको कंट्रीब्यूशन मार्जिन कहा जाता है, वो 600 रुपये आपके पास छोड़ रहा है। एक कस्टमर 600 रुपये दे रहा है उस महीने में। कंट्रीब्यूशन मार्जिन का थोड़ा बता। बस आपके पास बचा क्या, मार्जिन क्या बचा, उसको निकालने का है कि एक कंट्रीब्यूट कितना कर रहा है कस्टमर, आपको एक महीने में कितना कंट्रीब्यूट करा। ये आपके प्रोडक्ट के, आपकी सर्विसेज, आपके स्टार्टअप के हिसाब से आपको पर प्रोडक्ट भी निकाल सकते हो, पर कस्टमर भी निकाल सकते हो। तो प्राइस पर कस्टमर होगा कि रेवेन्यू पर कस्टमर होगा? बोलने का एंगल है। एक कस्टमर के एंगल से बोलोगे तो उसके लिए वो प्राइस है या कॉस्ट है, अपनी तरफ से बोलोगे तो रेवेन्यू है। इज ओनली द एंगल ऑफ व्यूइंग द थिंग। सो 1000 रुपया आपके पास आ रहा है, 400 रुपया आपको उस प्रोडक्ट को बनाने में लगा था वेरिएबल कॉस्ट, तो 600 रुपये आपके पास, वो एक सेल वो 600 रुपये का मार्जिन छोड़ गई, आपकी एक चिंता तो खत्म हो गई। अब दूसरी चिंता यह है कि जो पहले लगा रखा है 6 लाख रुपए, अब वो उसमें से, उस 6 लाख में से 600 रुपये तो कवर हो गए। अब ये 6 लाख पूरे कवर हो जाएं, क्या करना पड़ेगा? 1000 कस्टमर को वही काम मुझे 1000 बार करना पड़ेगा, मुझे 1000 कस्टमर चाहिए। सो माई ब्रेक इवन इज 1000 customers per month. The business stops burning cash at 1000 customers per month. मैंने जो पहले बातें कही थी, मैंने उनको
न्यूमेरिकल्स में डिमॉन्स्ट्रेट करके भी इसमें दिखाया है, आप इसको पढ़ भी सकते हैं, शायद बता रहे हैं, रिकॉर्डिंग सर्कुलेट भी होगी, so that you have the complete control on these numbers. अब आप इन्वेस्टर के पॉइंट से देखिए, बड़ा सिंपल हो जाता है जब ये कैलकुलेशन कर लेते हो। उसको पता है कि 700 कस्टमर पे आप लॉस पे होगे। अब अगर वो स्ट्रेटेजिक अप्रोच है कि आपने 700-800 तक रुकना है, तो उसको भी पता है कि मुझे इतने पैसे और लगाने पड़ेंगे, ये बर्न होगा। और अगर 1000 कर दिया, अब मान लो आप उसको 1 महीने बाद जाके बोलते हो जी मैं तो कोशिश कर ली 700 ही कस्टमर बने। शार्क में भी इतना दम होता है कि वो अपने एक कॉन्टैक्ट से 300 कर सकता है और ऐड। अब उसको चिंता है कि मुझे तो 3 महीने बाद और पैसे डालने पड़ेंगे, नहीं तो मेरा एग्जिट रुक जाएगा। सो देन ही स्टार्ट्स रनिंग। वो कहीं फ़ोन करेगा, आपको भेजेगा, नई मार्केट बताएगा कि वहाँ जाओ, अच्छा ये प्रोडक्ट का एक सस्ता वर्जन निकाल दो। ही विल स्टार्ट टेलिंग यू सम स्ट्रेटेजी। तो आपके कस्टमर 1000 हो जाएंगे तो बर्निंग खत्म होगी। नाउ ही इज़ ऑल्सो कंफर्टेबल, यू आर ऑल्सो कंफर्टेबल। अब आपने जैसे जैसे बढ़ाओगे या अपनी कॉस्ट कम करोगे, विल स्टार्ट अर्निंग। तो इस तरीके से इन फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस का प्रैक्टिकल यूज होता है। अब बड़ी चीज आ गई फाइनली, जो साल के एंड में देखी जाती है, प्रॉफिट एंड लॉस, जिसके लिए आप काम कर रहे हो। प्रॉफिट और लॉस में फाइनली ये देखा है कि बचा कुछ या गवा दिया। इसके स्टाइल्स होते हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं, वो हमारे स्कोप से बहुत बाहर है आज की डिस्कशन के। बट बेसिक बता देता हूँ कि जो ग्रॉस मार्जिन जैसा हमने देखा था, वो इन्वेस्टर का मेन फोकस होता है। ऑपरेटिंग लीवरेज होता है। ऑपरेशंस का मतलब आपने काम से, अपने काम से आपको कमाई, और बिना काम के कमाई कहाँ से आएगी? आ सकती है क्या बिना काम के कमाई? So grants में वो इसके अंदर काउंट करते हैं? वो कमाई नहीं है आपकी। आपका पैसा भी बैंक में पड़ा है, इंटरेस्ट आ गया, वो कमाई है, बट वो आपके काम की वजह से नहीं हुई, वो एंसिलरी है। आपकी गाड़ी खड़ी थी बाहर, कोई ट्रक ने टक्कर मार दी, फिर आपने उससे कंपनसेशन ले ली, ये आपका ऑपरेटिंग रेवेन्यू नहीं है, लेकिन पैसा तो आया है। सो दैट इज़ नॉट ऑफ इंटरेस्ट। उनके इन्वेस्टर के इंटरेस्ट में नहीं होती ये चीज़ें कि ये कहाँ से आया। वो आपके ऑपरेटिंग लीवरेज को देखता है कि आपके ऑपरेशंस की वजह से, आपके काम की वजह से कितना बचता है आपके पास। लीवरेज का क्या होता है? मार्जिन समझ लो, मार्जिन ही है। लीवरेज क्यों कहा जाता है इसको? जितना पैसा होगा आप उतने मेन्यूवर्स ले सकते हो, फ्रीली डिसीजन ले सकते हो। सो यू हैव सो मेनी लीवर्स। बहुत बताने का, बोलने का ढंग है बस। सिंपल टर्म्स को समझ लीजिए जो P&L से है। रेवेन्यू मोटा मोटा क्या है? जो पैसा आ रहा है। रेवेन्यू और प्रॉफिट में डिफरेंस है। प्रॉफिट जो बचा, रेवेन्यू जो आ गया बेचने से, पैसा आ गया। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो आपकी डायरेक्ट कॉस्ट उस चीज को बनाने में लगी। मार्केटिंग इसमें आ गया। सोल्ड, हाँ, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, बिल्कुल। उसमें से बचता है ग्रॉस मार्जिन। अब उसके बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस निकालते हो, आपकी टीम है, मार्केटिंग है, टेक्नोलॉजी है, टेलीफोन का बिल आता है, इंटरनेट का बिल आता है, ये सारे ऑपरेटिंग, यानी उस काम को करने में जो ऑपरेशंस पे जो खर्चा आ रहा है, अब ग्रॉस मार्जिन में से वो निकाल दो। उसके बाद बचता है एबिटा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, ये चीजें निकालने के पहले, बिफोर है ना, EB है, अर्निंग्स बिफोर। ये चीजें निकालने के बाद जो ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी बचती है, ये आपकी कमाई आपके काम करने की वजह से हुई। टैक्स तो आज 5% है, कल 10% हो जाएगा, तो नेट प्रॉफिट में इफेक्ट आएगा उसका, विच इज द फाइनल आउटकम। अब प्रॉफिट्स आर नॉट कैश। कैश का मतलब ये नहीं कि सिर्फ जो कैश जेब में पड़ा है, ओवरऑल फंड्स आपके पास टोटल आपके ब्रीफ केस में क्या है, चाहे वो बैंक है, चाहे आपकी जेब है, चाहे आपके वॉलेट में क्या है, इट इज कॉल्ड कैश। अब कैश होगा तो सर्वाइव करेगी कंपनी।
अब यहाँ ये समझना इंपॉर्टेंट है कि प्रॉफिट्स आर नॉट इक्वल टू कैश। हो सकता है आपके पास प्रॉफिट हो, कैश ना हो सकता है कैश हो, प्रॉफिट ना हो। अगर कैश नहीं है तो काम तुरंत बंद हो जाएगा, और अगर प्रॉफिट नहीं है और कैश है तो कुछ टाइम बाद बंद हो जाएगा। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। कैश नहीं है और प्रॉफिट है तो तुरंत बंद हो जाएगा। अभी आपने रिसेंटली कई खबरें पढ़ी होंगी, यूएस की खास करके आ रही हैं, लॉकडाउन। वो उनके कैश रिलीज का इशू होता है, डिसीजंस नहीं होते हैं, पॉलिसी मैटर्स है, कैश नहीं रिलीज हो पाता, लॉकडाउन हो गया, वो तुरंत लॉकडाउन हो जाता है। अगर किसी देश के पास पैसा नहीं हो तो वो डेफिसिट में करेंसी छाप के अपना काम कर लेता है, लोन ले लेता है, इधर उधर हो जाता है। सो कैश एंड प्रॉफिट आर टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। ये फर्क आता क्यों है? टाइमिंग, हमारी अर्निंग्स आने के टाइमिंग में जो डिफरेंस है उसकी वजह से ये फर्क आता है। आपने आज बिल कर दिया किसी को, आपके प्रॉफिट में तो एंट्री होगी, P&L में तो हो गया, लेकिन आपका 90 डेज का रिसीवेबल साइकिल है, टर्म उसके साथ है। कैश आएगा 90 दिन के बाद, कैश आज खत्म हो गया, कल का रॉ मटेरियल लाने के लिए पैसे नहीं है, तो कैश साइकिल आपका रुक गया। अब उसके बाद बेच नहीं पाओगे, जब बेचोगे नहीं तो प्रैक्टिकल दिक्कत आएगी। जब वो 90 डे के लिए आप जाओगे तो वो कहेगा जी आपने तो मेरा धंधा बंद करवा दिया, आपने सप्लाई क्यों नहीं दी, अब डिस्प्यूट खड़ा हो गया। सो कैश इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए इन्वेस्टर्स आपके कैश फ्लो को ज़रूर देखते हैं, P&L भी बाद में देखते हैं। अगली चीज़ होती है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में आपकी फाउंडेशंस के बारे में देखा जाता है, कितने एसेट्स हैं, लाइबिलिटीज़ क्या है। नॉर्मली P&L और बैलेंस शीट जब कोई लोन लेना होता है वहाँ ज़्यादा यूज़ होता है, इन्वेस्टमेंट लेनी होती है तो P&L के साथ कैश फ्लो ज़्यादा काम आता है। बैलेंस शीट में उनके लिए इक्विटी की फिगर देखते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा नहीं। इसको इन्वेस्टमेंट आपके स्टार्टअप इन्वेस्टिंग में बहुत ज़्यादा नहीं देखा जाएगा इसको। और आपकी प्रोजेक्शंस में भी बैलेंस शीट की फिगर्स को बहुत ज़्यादा को प्रोजेक्शंस में वर्कआउट करने की ज़रूरत नहीं है। यू ओनली नीड टू वर्क ऑन जो अभी तक हमने मैट्रिक्स, सर्वाइवल एंड ग्रोथ मैट्रिक्स डिस्कस किए हैं, एंड प्रोजेक्टेड प्रॉफिट, एंड इवन मोर इंपॉर्टेंटली कैश फ्लो। एक चीज़ और आपने क्लियरली उनको बतानी है, एग्जिट वैल्यू क्या हो सकती है। ये एक्चुअली आपने अपनी तरफ से नहीं बतानी है, ये आपको सेंस करनी होती है टॉक से कि इफ़ यू नीड सो यू मस्ट बी रेडी विद द कैलकुलेशन। अपनी तरफ से ये शुरू नहीं करना है एग्जिट की बात, वो करें तो करें, उसके लिए आपके पास आंसर होना चाहिए, बट नेवर स्टार्ट दिस टॉक बाय योरसेल्फ, नेवर, इट विल बी नेगेटिव इंप्रेशन। उसके लिए कैसे निकलती है एग्जिट वैल्यू? आपने ये काम शुरू किया, जब ये थोड़ी बड़ी हो जाएगी, जब ये स्केल पे चली जाएगी, इसको कौन खरीदेगा, कहाँ इसकी एप्लीकेशन होगी, कितने रेवेन्यू मल्टीपल पे ले सकते हैं, कितनी इंपॉर्टेंट होगी जो खरीदेगा, उसके लिए कितनी इंपॉर्टेंट होगी, और कब इस स्टेज पे पहुंच जाऊंगा कि कोई खरीद लेगा। अब आपका इसी एग्जांपल पे चलते हैं। एक्सपेक्टेड रेवेन्यू इन ईयर 6 इज से 100 करोड़। अब इंडस्ट्री में एक ट्रेंड 3 मल्टीपल का है, तो आपकी एग्जिट वैल्यू 300 करोड़ की होगी। आपने इन्वेस्टर को 15% इक्विटी दे रखी है, तो वो 45 करोड़ रुपए ले जाएगा। तो आपको ये देखना, ये आपने क्यों देखना है? आपने इसलिए देखना है क्योंकि पता है कि वो सिर्फ यही देखेगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपने प्रोजेक्शंस बनाई हैं, से पूछा जाएगा कि 5 साल बाद कहाँ हो सकते हो आप, 10 साल बाद कहाँ हो सकते हो, 3 साल बाद कहाँ हो सकते हो। सो यू मस्ट नो कि क्या मैंने इन्वेस्टर के लिए सफिशिएंट एग्जिट वैल्यू क्रिएट करी, या मैं अपनी प्रोजेक्शंस पे दोबारा वर्क करूँ। ये इंडस्ट्री मल्टीपल जी, कौन सा? ये वाला दोबारा बताओ। हाँ, अभी तक तो बिजनेस की बात कर रहे थे, अब मैं बात कर रहा हूँ इन्वेस्टर के इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ। रेवेन्यू मल्टीपल क्या होता है? हाँ, आता हूँ उसमें। जब आप
आपकी सपोज एक शॉप है आपकी, आप उसे 1000 रुपये कमा रहे हो महीने पे। अब आपको कोई आके कहे कि मैं 1000 रुपये दे दूंगा, तो क्या आप छोड़ दोगे? अगर आपको उम्मीद है कि ग्रो करेगी, नहीं छोड़ोगे ना दुकान, कि मेरे को दुकान ही दे रही है 1000 रुपये, तो मैं तुम्हारे 1000 किलो अंटिल यू वांट टू रेस्ट, बट दैट इज नॉट एज्यूम्ड इन दिस डिस्कशन। 1000 रुपये अगर शॉप दे रही है, फिर वो कहता है अच्छा चल 1500 ले ले, फिर आपके दिमाग में आएगा यार मैं जैसे मेरा धंधा बढ़ रहा है, तो 6 महीने बाद 1500 तो यही दुकान देनी शुरू कर देगी, क्या पता 2000 दे जाए। फिर आप कहोगे कि नहीं, फिर वो ऑफर करेगा अच्छा 2000। तो मैं सोचो यार ये 2000 दे रहा है, इसको कुछ तो इसमें दिख रहा है। मैं आज 1000 ले रहा हूँ, कमा रहा हूँ, ये मुझे 2000 दे रहा है, तो इसका मतलब ये 3000 भी इस दुकान से आ सकता है। अब वो कहता है अच्छा मैं 3000 दे देता हूँ। आप सोचते हो कि आएगा, पता नहीं आएगा, मुझे तो लेना नहीं आता, ये देख लेगा, इसको पता होगा, मैं छोड़ देता हूँ दुकान। तो 3000 पे आपकी डील हो गई। सो आपको अपने रेवेन्यू का 3 गुना मिल गया। सो दिस इज कॉल्ड रेवेन्यू मल्टीपल। आपकी एग्जिस्टिंग रेवेन्यू पे डील नहीं होती कभी भी। मुझे 3 कहाँ से निकालना था, हम इसको 10 क्यों ले? अगर ऐसा लगे, सामने वाला भी थोड़ा सा इंसेन होना पड़ेगा उसको भी, अगर 10 गुना देना है तो। नहीं, कैसे हम डिसाइड करेंगे कि नहीं होता, असेसमेंट है। इस बंदे ने 3 दिया, अगला बंदा हो सकता है एक भी ना दे, वो कहे कौन कहता है इसमें कमाई आएगी, ये तो यार 4 दिन बाद बंद होएगी दुकान, मैं तो इसको आधे में ना खरीदूं। दिस इज डील नेगोशिएशन असेसमेंट। आप भी जब इन्वेस्टर के साथ बात करोगे, 10 इन्वेस्टर से बात करोगे, एक दे देगा, बाकी 9 को नहीं लगा पोटेंशियल, लेकिन एक कहेगा यार ये तो नेक्स्ट स्टार्ट है, वो दे देगा। इंडस्ट्री मल्टीपल कहाँ से लेते हैं कहीं नहीं होता, जो नॉर्मल डील्स कुछ हुई होती हैं, उनको? हाँ, ये इंडस्ट्री से, इंडस्ट्री नॉलेज से आता है, वैल्यूएशन के लिए यही चीज़ चलती है। वैल्यूएशन में जैसे 10 अच्छा, मल्टीपल ज़्यादा जब स्टार्टअप्स में चलता है तब उसमें डिपेंड करता है कि आपकी प्रोजेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी पे आएंगे या रेवेन्यू पे आएंगे। अब नॉर्मली तो कुछ भी सही नहीं है, नोबडी नोज, तो एक इंडस्ट्री ट्रेंड पे ही ज़्यादा चलता होता है काम। अगर वो ये प्रैक्टिकली कैसे होता है फैसला, 5-6 करोड़ तक की वैल्यूएशन तक कंसिडर हो जाता है। वो देख लेते हैं कि प्रोडक्ट ठीक है, इन्वेस्टर ठीक, प्रमोटर ठीक है, फाउंडर ठीक है, मार्केट भी इट मेक्स सेंस, तो उस हिसाब से वो फिर उनके दिमाग में एक फिगर आ चुकी होती है, वो प्रैक्टिकली रिवर्स कैलकुलेट करते हैं आपको फिर बताने के लिए कि अच्छा इतना मल्टीपल मैं कंसीडर कर लेता हूँ। नॉर्मली 5 मल्टीपल पे बहुत सी डील्स होती हैं। हाँ, तो ये जो 300 करोड़ आपने लिखा है, ये मतलब एक डेफिनेट टाइम के बाद कितनी वैल्यू होगी इस कंपनी की, उसका जितना शेयर था उससे आज कितना इन्वेस्टर ने निकाल डाल दिया? दिया, आपने, आप स्टार्टअप हो, मैं इन्वेस्टर हूँ, मैं आज पैसा इसलिए डाल रहा हूँ कि मैं ये सोच रहा हूँ कि 5 साल बाद मैं कितने गुना ले जाऊंगा इस धंधे से। तो ये 5 साल बाद मान लो मेरी इच्छा है, 5 साल बाद आपका रेवेन्यू इतना हो गया, उस रेवेन्यू का तीन गुना हो गया, जैसा मैंने इनको समझाया, 3 गुना पे वो उसकी कंपनी की एग्जिट वैल्यू हो गई। उस वक्त वो एग्जिट वैल्यू देगा कौन? जो बंदा उस वक्त उसमें पैसा लगाएगा, जो नेक्स्ट लगाएगा वही तो देगा, कोई पैसा देगा तो ही मुझे मिलेगा। तो जब कोई और इन्वेस्टर आएगा, अब मेरा अपना एक टारगेट है कि मैं 2 से 10 करोड़ के बीच में इन्वेस्ट करता हूँ, कोई और बड़ा इन्वेस्टर है वो करता ही 50 करोड़ या 100 करोड़ पे है, तो जब बिजनेस उस लेवल पे पहुंचेगा तब वो बोलेगा अच्छा तू चल अब मैं संभालता हूँ। इक्विटी भी इसी बेसिस पे इक्विटी डालती है। नहीं सर, ये जो है एग्जिट वैल्यू जो है, ये रेवेन्यू तो 6 ईयर्स है। ये 6ठे साल में एग्जिट की बात हो रही है। हाँ जी, आज काम शुरू किया, 6 साल बाद उसका रेवेन्यू एस्टिमेट है कि 100 करोड़ का काम करेगा, और उस वक्त भी और ग्रोथ की संभावना में कोई बंदा, कोई इन्वेस्टर, कोई इंस्टीट्यूशन उसका 3 गुना पैसा दे के खरीद लेगी उस कंपनी को। जब वो खरीदेगी तो जो मेरा पीछे का पैसा लगा हुआ है वो 3 करोड़ वैल्यू होगी उसकी, मेरे पास उसकी इक्विटी 15% है, तो उसमें से 45 करोड़ मुझे मिल जाएगा, बाकी जिसके पास है उसको मिल जाएगा। सर ये जो वैल्यूएशन है, ये रेवेन्यू के ऊपर निकालते हैं वैल्यूएशन? और भी तरीके होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा रेवेन्यू के ऊपर चलते हैं। और भी तरीके, प्रॉफिटेबिलिटी भी है, नंबर ऑफ कस्टमर्स भी है।
अब आ जाते हैं अगला सब सेक्शन, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। दिस इज सिंपल, मनी रिसीव्ड डिवाइड बाय मनी इन्वेस्टेड। इसको आगे कॉम्प्लिकेट करेंगे अभी थोड़ा, बट फंडामेंटली ये इतनी सी कहानी है। इसको आप परसेंटेज टर्म्स में बता सकते हो, इसको आप मल्टीपल टर्म्स में बता सकते हो। जैसे मैंने प्रॉपर्टी की बात करी थी, एक प्लॉट खरीदा था 10 लाख का, 1 करोड़ में बिक गया, 10 गुना हो गया। कितने साल में हुआ, क्या हुआ, बाकी और कुछ कहानी नहीं, मल्टीपल, सिंपल मल्टीपल, बस 10 गुना होगा, आई एम हैप्पी। सो ये कुछ एक दो, और उसको परसेंटेज टर्म्स में करना है तो उसका परसेंटेज निकाल लो, सिंपल फार्मूला। तो ये रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट का फंडामेंटल इतना है। ईयरली बेसिस पे देखते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसे आता हूँ उस पर, वो अलग तरीका हो जाता है। अब इन्वेस्टर ने 1 करोड़ लगाया 10% की इक्विटी के अगेंस्ट, वही एग्जाम्पल पे चलते हैं। 6 साल बाद कंपनी 50 करोड़ में बिक गई, इन्वेस्टर का रिटर्न कितना हुआ, 5 करोड़। अब आरओआई कितना हुआ उसका, ये पहले सिंपल रखते हैं, इन दोनों फार्मूलाज पे चलते हैं। एक लगाया था 5 मिल गया, 400% उसका रिटर्न हो गया, मल्टीपल हो गया 5 टाइम्स। इसको कैसे भी आप एक्सप्रेस कर दो, उसको बोलो 400% बेनिफिट हुआ, या बोलो 5 टाइम्स पैसा, 5 गुना पैसा बढ़ गया, तो ये उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हुआ। जो आप बात कर रहे थे CAGR, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ, दो फॉर्मूलाज बात करेंगे, CAGR और IRR। CAGR है कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, सालाना किस दर पे कोई बिजनेस ग्रो कर रहा है। अब ये कहाँ काम आता है, एक स्टार्टअप पहले साल में 10-15% ग्रो करा, अगले में 50 कर गया, फिर 200% कर गया, फिर 10% माइनस हो गया, कोई ऐसे नए रेगुलेशन टैक्सेशन आ गई थी, तो आपने किसी को एक शब्द में बताना है। अब ये बताओ जी, पहले साल ये था, दूसरे साल ये था, वो कनेक्ट ही नहीं कर पाएगा, और कोई और दूसरे के साथ कंपेयर नहीं कर पाएगा, और बीच में ऊंच नीच तो हर चीज में होती रहती है। आपने ओवरऑल स्टेबिलिटी, ओवरऑल कॉन्सेप्ट देखना है। तो उसको स्मूथन आउट करने के लिए कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट को कैलकुलेट किया जाता है। ये रेवेन्यू में लेते हैं या प्रॉफिट में? रेवेन्यू में प्रॉफिट में ग्रोथ इसकी ले सकते हो, मना कहीं नहीं है, नॉर्मल ट्रेंड रेवेन्यू का चल रहा है। तो CAGR स्टार्टअप्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपका 2-3 साल की ट्रैक रिकॉर्ड है, वो एक कंपेरेबल नंबर मिल जाता है, जिसका फॉर्मूला ये सिंपल है, आपकी फाइनल वैल्यू और बिगिनिंग वैल्यू का एक रेशियो होता है। उसको जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं उस तरीके से टाइम पीरियड 1 टाइम पीरियड के अंडर रूट निकाल के, उसमें से वो एक डेसिमल आएगा, 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो उसमें से 1 निकाल देंगे, उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, तो वो आपका CAGR हो जाएगा। यानी आपका रेवेन्यू, आपका बिजनेस, या जिस पे भी आप लगाना चाहें, आप प्रॉफिट भी कहना चाहें, तो उस फिगर्स को ले लीजिए फिर कैलकुलेशन के लिए, तो वो आप बता सकते हैं कि आपका एनुअल ग्रोथ रेट ये रहा। जैसे नीचे एग्जांपल है, 20% एक फर्स्ट ईयर में, 200 दूसरे में, 50 तीसरे में। अब इसको 3 साल का CAGR ये फार्मूला लगाएंगे तो 75% का बन गया। फार्मूला ऊपर दिया भाई। ये लगाने से तो वैसे स्टार्टअप को कितनी ग्रोथ दिखानी चाहिए जी? देखिए, बड़ी कंपनी भी 15% ग्रोथ पे अच्छी लगती है, और स्टार्टअप्स जो होते हैं वो एक्सपेक्ट किया जाता है कि अपनी इनोवेशन की वजह से उनकी स्पीड अच्छी होगी। अब मैंने जो अपना बताया था कि मेरे वाला जो स्टार्टअप था, उसने 8 साल तक लगातार 100%, उसका CAGR 100 था, यानी हर साल डबल होता था। 100% ग्रोथ का मतलब यही है कि आप पिछले साल से डबल हो गए। अनदर इज IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। आपको जो कमाई आ रही है
आप कंपेयर करोगे कि अगर यही पैसा मैंने बैंक में डाल दिया होता बिना कुछ किए, मुझे 6% 7% तो मिल ही रहा था। इसलिए ये कैलकुलेट किया जाता है कि क्या आपको इस काम में ये सारी कॉम्प्लेक्सिटी और रिस्क लेने के बदले में आपको कितना रिटर्न मिला। अब इसको कैलकुलेट करने का ये फार्मूला है, इसको आप क्लिक करके आराम से पढ़ सकते हो। ये 3-4 बार पढ़ने में समझ आएगा जो नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड से हैं। टाइम पीरियड, कैश फ्लो एट टाइम टी, यानी एक जीरो टाइम आज का हो गया, टी का मतलब कुछ समय बाद। वो सारे पैसे आपके पास, कोई 1 साल में आया, कोई 2 साल में आया, कोई तीसरे के एंड में आया, कोई चौथे के एंड में आया, वो सारा कैश फ्लो को आप जीरो से लेके एन टाइम पीरियड तक उसको टोटल कर लेते हो, उसकी समेशन कर लेते हो, फिर ये फॉर्मूला लगाते हो। इसका कोई एग्जाम्पल भी है? इसके न्यूमेरिक्स आगे, हाँ आगे थोड़ा और सिंप्लीफाइड फार्मूला है, इसमें न्यूमेरिक्स नहीं है, ये बहुत ज़्यादा भी स्टार्टअप में आपके काम नहीं आएगा और इसको आपकी पिच में डालने की ज़रूरत भी नहीं है। ये आपकी नॉलेज के लिए मैंने एक स्लाइड डाल दी इसमें। इसका यूज़ क्योंकि हो सकता है कि आपकी चर्चा में कभी वो शब्द आ जाए, तो आप ब्लैंक नहीं होने चाहिए। सो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब है जैसे CAGR सालाना ग्रोथ थी, IRR आपको किस दर से आपका पैसा की कमाई आ रही है। प्रॉफिट के ऊपर है। ये आपकी इन्वेस्टमेंट के पॉइंट से, आपने किसी चीज़ में 100 रुपया लगाया है, आपको 5 साल बाद 200 या 300 मिल गए, आपका किस ब्याज की दर से आपको पैसे वापस मिलते गए। इसके कैलकुलेट करने का ये फार्मूला है IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इसको लेटर स्टेज के ऊपर सीरीज ए फंडिंग, बी फंडिंग तब काम में आ जाता है, जैसे नीचे के एग्जांपल है कि एक इन्वेस्टर ने $1 मिलियन डाले एक स्टार्टअप में, उसको 3 साल बाद 5 मिलियन मिले, किसी को 7 साल बाद 5 मिलियन मिले, दोनों का मल्टीपल तो सेम है। अब कॉमन सेंस भी बताती है कि जल्दी पैसा मिलना अच्छा है, लेकिन एग्जैक्टली कितना, ये तो सिंपल केस था ना, कॉम्प्लिकेट केस हो जाए क्योंकि बराबर पैसा मिला था। अब मैं कहूँ जी उसको 10 मिलियन मिला 7 साल बाद, अब मुश्किल होगी ना कंपेयर करना। अब कंपेयर करने के लिए क्या करोगे, ये फार्मूला लगाओगे। जब ये फार्मूला लग जाएगा तो दोनों एक परसेंटेज के टर्म में आ जाएंगे, जिसका परसेंटेज बेटर वो केस बेटर। फाइन। रेट ऑफ रिटर्न के ये टेक्स्ट बुक फार्मूलाज है। आज की करंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट को डिवाइड करेंगे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से, उसको परसेंटेज टर्म्स में करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब करंट वैल्यू का क्या मतलब है, जो हमने एग्जिट वैल्यू निकाली थी, आज ही इन्वेस्ट करा और आज ही करंट वैल्यू निकाली हो तो सेम ही हो गई, फिर तो ROI 0 हो गया। तो ये क्या है, करंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। मान लो वो उम्मीद करता है कि 5 साल बाद या 6 साल बाद मैं 300 करोड़ पे कंपनी बिकेगी, मुझे 45 करोड़ मिल जाएंगे, और आज मैं दे रहा हूँ 1 करोड़, तो अब वो कहानी बदल जाएगी। यानी आज ही वो सोच लेता है कि तब होएगी इतनी, तो ROI निकालने के लिए तब की वैल्यू को आज ही मान के इन्वेस्टमेंट निकालता है। एनुअलाइज्ड ROI, ये आपके वाला सवाल आ गया कि सालाना में अगर उसको तब्दील करना है, एक तरीका तो सालाना वाला IRR है, दूसरा तरीका है एनुअलाइज्ड ROI। एनुअलाइज्ड ROI का मतलब कि मुझे सालाना किस दर पे मिली, तो वो एक मैथमेटिकल फार्मूला है बस। अब प्रोजेक्शंस को बिल्ड कैसे करना होता है, आपने मीट्रिक समझ लिए, बेसिक फाइनेंसेस जो डिस्कस होंगे वो समझ लिए, हमने एग्जांपल डिस्कस कर लिए। अब आपने प्रोजेक्शंस बनानी कैसे है, ROI भी समझ लिया। अब वो स्टेप बाय स्टेप चलता है। तो पहला, जैसे मैंने शुरू में कहा था कि सबसे पहले यू फोकस ऑन योर कस्टमर्स, योर रेवेन्यू। जैसे एग्जांपल दिया है कि वी सेल टू 500 कस्टमर्स एट 2000 पर मंथ, तो आपको रेवेन्यू फार्मूला अपना बड़ा क्लियर होना चाहिए। इतने कस्टमर्स, ये प्राइस और इतनी फ्रिक्वेंसी। एक कस्टमर हर महीने में 1 ही बार आएगा या 10 बार आएगा, तो आपको रेवेन्यू अपना बड़ा क्लियर होना चाहिए और रेवेन्यू स्ट्रीम क्लियर होनी चाहिए। जैसे डायरेक्ट टू कस्टमर बेचोगे
या वेबसाइट से बेचोगे या अमेज़ॉन से बेचोगे, या आपका कोई सब्सक्रिप्शन प्लान है, आप ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ाओगे, स्कूल्स को बेचोगे, या स्टूडेंट्स शाम को आके आपकी ऐप को एक्सेस करेंगे. सो यू मस्ट बी वेरी क्लियर ऑफ योर रेवेन्यू स्ट्रीम्स एंड रेवेन्यू. इन्वेस्टर टेस्ट ये रहेगा, वो आपसे क्वेश्चनिंग करके जज करने की कोशिश करेगा कि आपको वाकई समझ है इसकी, या आपने एक पैसे लेने के लिए गिमिक क्रिएट कर दिया. वो आपको पलट पलट के वही चीज़ पूछेगा, लेफ्ट से राइट से आपका आंसर मैच करेगा. तो वो अगर समझ में आए और उसके पीछे लॉजिक है, आपने कह दिया जी मेरे पास तो हर महीने 500 स्टूडेंट आ जाएंगे, कैसे आ जाएंगे? यू मस्ट एक्सप्लेन दैट. हाँ, आप कहते हो जी मेरे फादर प्रिंसिपल हैं स्कूल में, वो कंपलसरी कर देंगे. तो दिस इज वन वे ऑफ सेइंग, बट दिस विल नॉट फेच मनी. हाँ, आप कहो जी मेरा प्रोडक्ट इतना बढ़िया है, मैं मेडिकल की तैयारी करवाता हूँ, इतने बच्चे करते हैं, वहाँ से मैंने ये 5 साल सर्वे करा है कि ऑफलाइन क्लासेस में दिक्कत रहती है, मैं शाम को उनके डाउट्स क्लियर करूँगा. देयर इज़ अ लॉजिक. हाँ, ये ठीक है. फिर वो सोचेंगे अच्छा ये 500 बोल रहा है, 100 तो शायद आ ही जाएंगे, लेट अस ट्राई. इस तरीके से थिंकिंग चलती है. यू हैव टू अंडरस्टैंड थिंकिंग. नंबर्स तो है ही नहीं है, प्रोजेक्शंस है ना, वो किसी को नहीं पता ये होंगे नहीं होंगे. तो सारी डील थिंकिंग के ऊपर होनी है सारी. आप कितना इन्वेस्टर की थिंकिंग को इन्फ्लुएंस कर सकते हो. सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, ये पेटीएम भी सास है. अब नॉर्मली स्टार्टिंग में तो अभी छोटा वॉल्यूम लोगे, एंजल फंडिंग या माइक्रो फंडिंग जितनी भी है, वो 3 साल की प्रोजेक्शन काफ़ी है. हाँ, वीसीज जब वीसी लेवल पे आता है तब वो 5 साल की प्रोजेक्शंस मांगते हैं. नॉर्मल कर्व क्या रहता है, 1 से 2 साल लॉस रहता है, दूसरे से तीसरे साल ब्रेक इवन रहता है, तीसरे से 5वें साल स्केल रहता है. लेकिन मैंने ये देखा है कि ब्रेक इवन 18 से 24 के बीच में अगर रखते हो, 18 ही रहे तो ज़्यादा अच्छा होता है. तो इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट काफ़ी अच्छा रहता है फिर उसमें 18 के आसपास रहे तो. द मोमेंट इट क्रॉसेस 24, वो थोड़ा सा उनको डाइसी लगना शुरू हो जाता है. मिस्टेक्स क्या होती हैं जब हम प्रोजेक्शंस बनाते हैं? हॉकी स्टिक रेवेन्यू विदाउट लॉजिक, जैसा शुरू में मैंने जिक्र किया था. कैश फ्लो मत नहीं बताना, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है. सो कैश फ्लो पे ज़्यादा वर्क करना है. वर्किंग कैपिटल को असेस ही नहीं किया. आपको काम चलाने के लिए वर्किंग कैपिटल कितना चाहिए, आपने शुरू का खर्चा बता दिया, वर्किंग कैपिटल आपने रखा ही नहीं है. मार्जिन्स आपके अनरियलिस्टिक हैं. आइसक्रीम बनाई मैंने, 100 रुपये की बेची, 80 रुपये मार्जिन हो गया, नहीं हो सकता. सो अनरियलिस्टिक नहीं होना चाहिए. फिर एक अगला कॉन्सेप्ट आज की डिस्कशन का है सेंसिटिविटी एनालिसिस. कैसे करना है वो भी आगे बताऊंगा. सेंसिटिविटी एनालिसिस होना बहुत ज़रूरी है. और ये कहाँ काम आता है? अक्सर क्वेश्चन आता है जब आप कहते हो जी 1000 कस्टमर हो जाएगा मेरे पास. वो क्वेश्चन होता है अच्छा नहीं हुआ तो, 500 हुआ तो क्या धंधा बंद हो जाएगा? व्हाट इफ, ये क्वेश्चंस आते हैं. तो उसका जवाब आपके पास सेंसिटिविटी एनालिसिस में रेडी होना चाहिए. कैश फ्लो स्टेटमेंट मतलब उसमें डालनी है pitching में? आपके पास होनी चाहिए, रेडी होने चाहिए सारे. तो जनरली से सीएजी बना के देते हैं ताकि आप भी बना सकते हो, इतना मुश्किल नहीं है. जब आप एक्सेल पे अगर बैठो, जो आपने काम करना है. मैंने अपनी फंडिंग जब ली थी तब मेरे पास ये सब कोर्सेज वगैरह बाद में करें. उस वक्त मैंने ये मैनेजमेंट पीएचडी नहीं करी हुई थी. मैंने सिर्फ प्रैक्टिकली क्या क्या होगा, कहाँ से पैसा होगा, क्या उस चीज़ को पेपर पे करके एक्सेल में डाल दिया था. आई डिड नॉट रिक्वायर एनी सी. तो ये आपकी जितनी रियलिस्टिक रहेगी उतनी बड़ी. आपके पास अगर कोई टेक्निकल टर्म्स पे बात फंसती है तो आपके पास आंसर है कि ये टेक्निकल एक्सप्रेशंस हैं, ये कोई एक्सपर्ट प्रोफेशनल पैसे लेके बना देगा. मैं वो बता रहा हूँ जो मेरा धंधा करके क्रिएट करेगा. सो दे रिस्पेक्ट व्हाट यू से. रूल ऑफ थंब क्या रहता है, क्या क्या देखते हैं पहले 3-4 मिनट में इन्वेस्टर्स? आपका सीएसी और एलटीवी का गोल्डन रेशो, 6 से 12 महीने का रनवे है अभी आपके पास, या 6 महीने से पहले ही पैसे की ज़रूरत पड़ जाएगी. आपका ग्रॉस मार्जिन बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा,
आपने लेट ज्वाइन किया था? अच्छा, वो सीएससी पे बहुत लेंथी डिस्कशन हमारी हो चुकी है, आप स्लाइड एक बार देख लें, नहीं तो इनके टाइम की वैल्यू नहीं रहेगी। काफ़ी लेंथी डिस्कशन करी है हमने सीएससी पे। अब एक एग्जांपल मैंने दिया है, कैसे आप प्रोजेक्शंस बनाओगे। आपने पहले मंथ, छठे मंथ और 12th मंथ का स्टेटस दिया कि नए कस्टमर्स इतने जुड़ेंगे, तो आपको लॉजिक देना पड़ेगा। सिंपली अगर लास्ट वाला कॉलम आप नहीं लिखते हो तो डज नॉट कैरी एनी वैल्यू। कि मैं इतने सेल्स पर्सन रखूँगा, हर सेल्स पर्सन इतने कस्टमर लेके आएगा, तो मेरा टोटल 5, 25 और 60 इतने इतने महीने पे बन जाएगा। देयर मस्ट बी लॉजिक, हवा में नहीं बातें चाहिए। अब मेरे टोटल कस्टमर्स इस माइलस्टोन के ऊपर कितने हो जाएंगे, रेवेन्यू कितना हो जाएगा। कस्टमर पता लगे तो रेवेन्यू पता लग जाएगा, क्योंकि आपने प्रोडक्ट का प्राइस तो रखा ही हुआ है। आपके जो कस्टमर्स हैं वो किसी एक गिवन प्राइस के ऊपर ही आएंगे। आप अपने प्रोडक्ट का प्राइस ज़्यादा कर दोगे, हो सकता है कस्टमर्स कम हो जाएं। सो व्हेन वी से कस्टमर, इट इज़ बाय डिफ़ॉल्ट कि एट दैट प्राइस। अब मार्केटिंग खर्चा इतना हो रहा है, सैलरीज इतनी निकल रही हैं, तो आपके पास प्रॉफिट इतना हो गया। अब आप एक छोटी सी एक्सरसाइज, फर्स्ट मंथ में आपका $5500 का लॉस हो रहा है, छठे मंथ पे 2000 का लॉस हो रहा है, 12th मंथ के ऊपर $23000 का प्रॉफिट हो रहा है। कैन एनीबडी टेल कि ब्रेक इवन कब आया होगा इसमें? एनी ऑनलाइन कैंडिडेट्स इफ दे आर स्टिल विद मी? गुड। अगर प्रिसाइज प्रोजेक्शंस चले तो 8th मंथ में ब्रेक इवन आया है इसका। इस तरीके की प्रोजेक्शन शीट्स आपको दिखानी चाहिए। मैट्रिक्स क्या लिए, स्टार्टिंग कस्टमर इतने थे, मंथली ग्रोथ रेट ये था, प्राइस कितना मिला, वेरिएबल कॉस्ट क्या थी, फिक्स्ड मंथली कॉस्ट क्या रही, आपके पास शुरू में कैश 20 लाख रुपए था या जो भी था, वो बेसिक्स लेके आपने ये प्रोजेक्शंस बनानी है। दीज आर दी प्रोजेक्शंस। 3 साल से ऊपर तो जाना ही नहीं है। और बीच में अगर कोई माइलस्टोन आप प्लान कर रहे हो कि जी ये तो मेरे पास पैसा था, उस हिसाब से मैंने बनाई, अब आप भी मुझे पैसा दे दोगे, तो प्रोजेक्शन ऐसे बदल जाएंगी। नहीं तो वो बीच में पूछ लेगा, और अगर आपकी ये टिप्स पे नहीं है तो उलझ जाओगे कि उसका इफेक्ट कितना है। वो आपने जितने पैसे मांगे हैं उससे, आपने 1 करोड़ रुपए मांगा है, 1 करोड़ आपने फिर बताया भी होगा कि कहाँ लगाऊंगा मैं। वो 1 करोड़ लगाने से मेरी प्रोजेक्शंस में क्या चेंज आएगा, तो आपके पास बी प्लान होना चाहिए कि पैसे नहीं मिलते तो ये प्रोजेक्शन है, मिल जाते हैं तो ये प्रोजेक्शन है। अब उसके बाद सेंसिटिविटी एनालिसिस आएगा फिर इसके बाद। तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट एंड लॉस भी आया है और क्लोजिंग कैश भी आ रहा है। अब उस लास्ट 2 कॉलम को जब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि प्रॉफिट एंड कैश का कितना बड़ा डिफरेंस होता है। नाउ द फाइनल सेक्शन, सेंसिटिविटी एनालिसिस। यानी व्हाट इफ, जैसे कि ऐसा हो गया तो क्या होगा, ऐसा हो गया तो क्या होगा, दैट इज कॉल्ड द सेंसिटिविटी एनालिसिस। फॉर एग्जांपल द इन्वेस्टर सेज कि आपकी मार्केटिंग कॉस्ट डबल हो गई, तो क्या करोगे? आप ऑनलाइन मार्केट करते हो और ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन प्लान्स महंगे कर दिए, तो क्या होगा? तो डाउनसाइड केस भी रेडी होना चाहिए। इससे पता ये चलेगा कि आपने अलग अलग सिनेरियोज के लिए अपने आप को तैयार करके रखा हुआ है। आपकी क्रेडिबिलिटी बनेगी कि आप अच्छे से वर्कआउट करा हुआ है आपने, और रिस्क्स आपने मैनेज करने के लिए आप तैयार हो। कैसे होगा ये, किस किस सिचुएशन के लिए आप करोगे? अब हर परिस्थिति के लिए तो सेंसिटिविटी एनालिसिस नहीं हो सकता। हर बिजनेस के कुछ इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स होते हैं, जैसे सीएसी की बात हुई, मंथली चर्न रेट हुआ, एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र हुआ। तो आप अपने 2-3 क्रिटिकल ड्राइवर्स को पहचान के चले, उसका एक बेस केस तैयार करके चले कि ये मुझे प्रैक्टिकल सा लगता है कि ऐसा होगा। उस हिसाब से आपने प्रोजेक्शंस कर लेनी है।
अब उसके बाद आपका स्ट्रेस टेस्ट रेंज मतलब कि आप कितने ऊपर या नीचे की रेंज में चेक करना चाहोगे, वेरिएंस कितनी मान के चलोगे। आपने डिसाइड किया 20% ज़्यादा या 20% कम पे मैं चेक करता हूँ। आप अपने मॉडल को, इसी प्रोजेक्शंस को उस हिसाब से दो और केस बना लोगे, प्लान +20 प्लान -20। उस हिसाब से आपका स्ट्रेस टेस्ट आ जाएगा, सेंसिटिविटी एनालिसिस की प्रोजेक्शंस आ जाएंगी। जैसे ये एक इस पे भी डेमोन्स्ट्रेशन मैंने दी है कि आपका CAC $40 है तो ब्रेक इवन आपका 8 ही महीने में हो जाएगा। 50 है तो बेस केस में 12 महीने में होगा। 60 चला गया तो मुझे 18 महीने लग जाएंगे। और उसका फाइनल कंक्लूजन क्या होगा, जिसको कंजर्वेटिव है, कॉमन अंडरस्टैंडिंग के लिए वर्स्ट केस मेंशन किया है, जिसको आपने कंजर्वेटिव के नाम से प्रेजेंट करना है, तो उसमें आपको ये फ़र्क पड़ेगा कि जो अभी पैसे हैं वो सफिशेंट नहीं रहेंगे, इसलिए मुझे और पैसे बीच में ज़रूरत पड़ेगी। बेस केस में आपके पास सफिशेंट पैसे हैं और बेस्ट केस आ गया तो आप हाईली प्रॉफिटेबल हो जाओगे। दीज आर द कंक्लूजन्स दैट आर ड्रॉन फ्रॉम सेंसिटिविटी एनालिसिस। और इस तरीके से प्रोजेक्शंस बनाई जाती है। सो नाउ व्हाट आर दी क्वेश्चंस इफ एनी लेफ्ट, तो आप पूछ सकते हैं। हमारे पास कोई स्टैंडर्ड वो भी रहता है फॉर्मेट भी हमने ये तैयार करना है। बिजनेस का कभी कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं होता, आपको अपने काम को बताना है, ये आपकी स्किल है। बाकी मैंने फिर भी एक चीज़ें आपके नॉलेज के लिए मैंने यहाँ काफ़ी डिमॉन्स्ट्रेशन और प्रोजेक्शंस बना के दी हैं, आप इनको रेफ़र कर सकते हो। ऑनलाइन में से कोई क्वेश्चंस किसी के? Yes, I got one question. I am Rachit here. जी। तो आपने बताया था कि जो इन्वेस्टर एक एग्जिट करता है एंड दूसरा जो इन्वेस्टर अगर उसमें इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसका कोई नेगेटिव कनोटेशन भी है, बिकॉज ही विल सी दैट कि ये तो एग्जिट कर रहा है तो मैं इसमें पैसे क्यों लगाऊं? नहीं नहीं, वो नहीं होता, बिकॉज हर किसी का अपना अपना लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है कि कितने लेवल तक उसने इन्वेस्ट करना है। ये इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। और जब भी कोई एग्जिट करता है, ये ज़रूरी नहीं है कि वो पूरा एग्जिट कर जाता है, वो अपना कुछ स्टेक बेचना शुरू करता है। अब जो बाद में लेटर स्टेज पे आता है, ही नोज़ कि इसने बहुत अर्ली स्टेज पे और मेरे से ज़्यादा रिस्क लिया था, मैं तो अब एंटर कर रहा हूँ जब बिजनेस ऑलरेडी एस्टेब्लिश हो चुका है। तो जो बंदे ने पहले रिस्क लिया है, ही डिजर्व्स टू अर्न अ बिट नाउ। अब वो उसकी अपनी चॉइस है, क्या पता उसके पास कोई और स्टार्टअप आ गया, क्या पता उसको अब इन्वेस्टमेंट कहीं और करनी है, मे बी ही वांट्स टू परचेज एन आइलैंड। तो इसलिए वो इसका कोई नेगेटिव प्रभाव नहीं होता। जब कोई अर्लियर स्टेज का कोई भी एग्जिट करता है तो दैट इज कंसिडर्ड हिज ओन पर्सनल बिजनेस डिसीजन। या थैंक यू। इन्वेस्टर्स का वो रहता है पीरियड में, मैं इतने पीरियड के बाद एग्जिट कर दूंगा। एस्टिमेट होता है, पता किसी को नहीं होता वो, और वो फ्लेक्सिबल भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि एक ही बार में अपना फुल लिक्विडेशन नहीं करते, वो थोड़ा थोड़ा करके, बहुत बार तो आईपीओ तक इनिशियल इन्वेस्टर भी बैठे रहते हैं। एनी अदर? Sir, hello. हाँ जी, हाँ जी। Sir, my name is Shanmuvel, sir. I have a question. जी, Do we have any correlation between the golden ratio and the CAGR, sir? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन गोल्डन रेशो And the CAGR? ओके? Do we have any? यस यस, Because better is the golden ratio, more will be the growth rate, because both okay, relate to revenue. yeah, okay. Better the golden ratio, Yes, better will be the yes, CAGR. yes. Okay. Thank you. तो जैसे एक स्लाइड में डिस्कस किया था कि आप कस्टमर्स को फिक्स मान सबने $100 पर मंथ माना हुआ कस्टमर पे, तो मेरे 1000 कस्टमर होंगे तो मेरा 10,100। तो जैसे जो मेरा स्टार्टअप है वो एक सर्विस प्रोवाइडर है, पूरी इंडस्ट्री में वो एवरेज। सर ऐसे तो कुछ इंडस्ट्री आपको 1 लाख का ऑर्डर देंगी, हो सकता है अगली इंडस्ट्री को 25 लाख का ऑर्डर देंगे, कुछ इंडस्ट्रीज आपको सिर्फ 50 लाख का ऑर्डर देंगी। सर उस केस में कैसे फिर अपनी वैल्यू को देख सकते हैं? हो सकता है कि आपने कुछ ऐसी इंडस्ट्री में टैप इन किया फैक्ट्री में, इनके पास 100 मशीनें लगी हुई हैं और उन्होंने आपको 100 मशीनों का ऑर्डर दे दिया और आपने कुछ ऐसी फैक्ट्री में बस 2 ही मशीन देखी, तो उस सिनेरियो में प्री वैल्यू ये सब कैसे फिर
साइड? हाँ, स्टैटिस्टिक्स में हमें ये पढ़ाया जाता है कि ये जो वेरिएशंस होते हैं उनको एक्सप्रेस करने के लिए कुछ स्टैटिस्टिकल मेथड्स हैं। तो आप उनमें से किसी को भी जो आपके स्टार्टअप पे यूज़ होता है, तो नहीं तो सबसे सिंपल आप एवरेज को तो लेके चलो, एवरेज पकड़ के चलो आप, क्योंकि वो आगे पीछे कोई कभी किसी मंथ कम हो गया तो किसी महीने ज़्यादा भी तो होगा। मान लीजिए कि हर फैक्ट्री से एवरेज इतना आता हम्म, आपने क्या करना है, आपने जब प्रोजेक्शंस बनाओगे, आपकी फैक्ट्रीज पता है कि उनकी डिमांड, अब उसके पीछे लॉजिक चाहिए जी। मैं 5 फैक्ट्रीज के पास गया था, उन्होंने कहा जी मेरा 2 से लेके 5 तक का हर महीने हो सकता है, तो आप मॉडल फिगर या मीडियन फिगर निकाल सकते हो। मीन मीडियन मोड में से जो आपकी ज़्यादा लॉजिक ठीक बैठे, तीनों में से कोई फिगर ले लो। तो जो अपने फर्स्ट ईयर में ही है और जो जिनका जस्ट रिवेन्यू स्टार्ट हुआ है या फिर रिवेन्यू हुआ ही होता ही नहीं है अक्सर। हाँ, तो फिर वो प्रोजेक्शंस कैसे बनाए? हाँ, ये प्रोजेक्शंस बनाने के लिए आपके पास 2-3 तरीके होते हैं। एक तो आपको मेन बात वही आ जाती है कि आपको लॉजिक देना है। उनको भी पता है कि इनकी सारी बात बिल्कुल गलत भी हो सकती है। दे वांट टू सी कि आप कितना एफर्ट्स इसमें करें, हाउ सीरियस यू आर। और प्रैक्टिकली भी ऐसा होता है कि आपने वर्क किया है तो उसमें कुछ सक्सेस तो मिलती है। अगर हम 100% सही नहीं हो सकते तो हम 100% गलत भी नहीं हो सकते अगर काम किया है तो। द पॉजिटिव पार्ट ऑफ दिस इज, द ब्यूटी ऑफ दिस थिंग एनालॉजी इज दिस। तो आपने, एक तरीका तो ये है कि आप अपनी रियल कस्टमर के साथ फील्ड में उतरने के बाद मार्केट रिसर्च करी हो, वो सबसे बढ़िया है। दैट इज़ द मोस्ट ऑथेंटिक। कि जी मैं 10 बंदों के पास गया था, वहाँ से मुझे ये फीडबैक मिला, उसके बेस पे ये प्रोजेक्शन है। ये सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट करी जाती है। इससे दूसरी होती है एनालॉजी, जैसे मैंने ड्रॉ करी थी जी, इतने फ्रिज बिके, इतनी ग्राइंडर्स बिके, तो आप एनालॉजी ड्रॉ कर सकते हो, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स ले सकते हो, वहाँ पे किसी इंडस्ट्री की रिपोर्ट को रेफर कर सकते हो। लेकिन अकेला अगर आप सेकेंडरी डाटा यूज़ करते हो तो वो थोड़ा वीक समझा जाता है। हाँ, आप ये कह सकते हो कि जो इंडस्ट्री डाटा ये था, उसके बाद मैं फील्ड में उतरा, मैंने फिर यहाँ यहाँ संपर्क करके ये मेरा प्राइमरी सर्वे है, तो इन दोनों को मैंने मिक्स करके अपनी ये प्रोजेक्शंस बनाई, उस हिसाब से आप इसको करोगे। वी हैड फ्यू क्वेश्चंस इन द ईमेल, 2 तो मेरे ख्याल से कवर हो गए हैं। सो बट इफ समबडी इज देयर स्टिल ऑनलाइन तो हम उनसे ले लेते हैं उसमें। और ऑनलाइन आए हैं 2-3 क्वेश्चंस, और अगर कैंडिडेट्स नहीं है देन वी कैन क्लोज इट। So, agar online, if there are any questions, you can please ask. I don't think. हाँ, मेरे ख्याल से हो गए हैं।